नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। धराई यूएसए डायरी के 2024 के लास्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब ये वीडियो अपलोड होगा तब तो 2025 हो गया होगा। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। तो अब ये हेल्दी और टेस्टी खजूर बिस्किट ड्राई फ्रूट्स से आप मुंह मीठा भी कर लीजिए। આઈકિયાનું બધું આપણે વોશ કરે છે ને, નવ્યા હેલ્પ કરાવે છે મમ્મીને બધા વાસણ જે લીધા. હા, હેડ નીચે આવે, વાગે નહીં એટલા માટે. ઓકે, કાચના મમ્મી ધોઈ લેશે. હા, આપણે શાક બનાવવું છે મમ્મીને. ઢાંકણા આમાં. ઓકે, ચમચી બાજુ. હા, વોર્મ વોટરથી ધોઈએ છીએ ને એટલે ઠંડા ન લાગે હાથમાં. અને અરે રામકથા સાંભળીએ છીએ ને. નાની નાની ચમચી બેબી જ્યારે સોલિડ ખાશે ને ત્યારે, અને તું આનાથી જમી શકીશ અત્યારે ને, બેબી जमी सकते ना जमी. हाँ, दही दाल. तो आज के वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ नया आप देखने वाले हो, तो बने रहिएगा एंड तक. जैसे कि आपने देखा जो भी हमने आइकिया से किचन की आइटम ली वो वॉश कर रहे थे, पर जब हम आइकिया गए थे 30 दिसंबर को, अगली इवनिंग को, आज 31 दिसंबर है, गए थे 30 दिसंबर की सांझ को. वैसे तो शिकागो में 3 से 4 आइकिया के स्टोर हैं, पर ये स्टोर हमारे घर से नज़दीक है, सिर्फ 30 मिनट ही, आधे घंटे की दूरी पर. और भी आइकिया के बहुत स्टोर है. मुझे पता है इंडिया में भी सारे मेट्रो सिटी में, जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, वहाँ पे आइकिया ओपन हो गया है. और आइकिया की खास बात यह है कि यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, और मेड इन इंडिया की भी बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं. तो स्टेनलेस स्टील, क्योंकि मैं अभी नो प्लास्टिक की ओर जा रही हूँ मेरे किचन में, तो प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो. तो हमने वो भी आइटम ली. क्या क्या शॉपिंग किया आइकिया से वो भी आप देखोगे ये वीडियो में. शॉपिंग हॉल, आइकिया शॉपिंग हॉल. तो आइकिया में अगर एक बार आप जाओ ना, तो चलना तो 10,000 स्टेप तो आसानी से हो जाते हैं. तो बहुत चलना हुआ. फिर घर आके मैं डिनर बना के गई थी उस दिन. तो फिर आप एंड तक बने रहिएगा हमने क्या क्या लिया वो देखने के लिए. और 2024 का लास्ट डे कैसा रहा, रियलिस्टिक. हमने घर में सात्विक तरीके से हमारा लास्ट डे सेलिब्रेट किया. और वैसा ही होता है, क्योंकि नया साल चेंज होता है तो ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा एकदम आपके जीवन में चेंज हो जाएगा. छोटी छोटी बातों में आप बड़ा बड़ा आप लाइक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका दृष्टिकोण रखिए, तो आपको वो लॉन्ग रन में आपको वो देखेगा चेंज. नव्या, हम इसके अंदर ચમચી રાખવાનું. ડીશ ડ્રાયર ગોઠવી શકીએ આપણે, સૂકવી શકીએ ડીશ બધી. કેમ કે બેબી આવશે પછી બધું એનું આવશે ને સ્ટફ. હા, પછી આ ચમચી હોલ્ડર, સ્પૂન હોલ્ડર નાનું મોટું. પછી આ છે બેબીનું ડાયપર ચેન્જિંગ સ્ટેશનનું કવર. નહીં, આ કવર છે. અને આ છે ઇન્ફ્લેટેબલ ઓલું આપણે ગાદી, મેટ્રેસ નાનું નાનું. બેબી છે ને, આના ઉપર ડાયપર ચેન્જિંગ સ્ટેશન ઉપર છે ને આવી રીતે ગાદી બની જાય. શું બની જાય? નાની ખડી ગોદડી જેવું. મેડ ઇન ઇન્ડિયા છે. મેડ ઇન ઇન્ડિયા છે. મેડ ઇન ઇન્ડિયા. આ છે ને ફૂડ, આપણે વેજીટેબલ કટ કરીએ ને એમાં વુડન ડીશ આમાં કટ કરીએ ને પછી આમાંથી સીધા આમાં ભરી શકીએ આપણે વુડન ચોપર્સમાં. પછી આ છે લોટ કાઢવાનું, સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું ઘઉં લોટ ચોખા કાઢવાનું સ્પૂન. પછી આ નાનું પેન, નાનો વઘાર કરવા, પેનકેક બનાવવા. આયર્નનું પેન છે. લોહે નાની કઢાઈ. કેવું સરસ છે. મિની પેન. મિની પેન,
નાની નાની ભાખરી બને, પેનકેક બને, વઘારી થાય, હે ને. નવ્યાના ફોટા માટે બસ ફ્રેમ બતાવજો, ઓકે. આઈકિયામાંથી કઈ ફ્રેમ લીધી? નવ્યાનો સ્કૂલનો ફોટો છે, અને આ સ્કૂલ છે નવ્યાની. ઓકે, ગ્રીનમાં આપણે ફોટો ફ્રેમ રાખશું ને, ઓકે. આમ રાખશું. આ બધા ટીચર છે અને નવ્યાના ક્લાસમેટ છે, ઓકે. અને આ ફ્રેમ લીધી આપણે. હા, આમાં કેવી રીતે ફોટો આપણે ફિક્સ કરી દઈશું. પછી એ નહીં, આમ હોય તો નવ્યાનો ફોટો, ઓકે. સાઈડમાંથી આપણે થોડું ક્રોપ કરીને. બર્ફ ક્લોથ બેબી વધણી કરે ને, દૂધ પીને પછી ખભે આપણે એને બોટકા ખવડાવવા રાખીએ ને બર્ફ કરવા, ત્યારે છે ને આપણે બર્ફ ક્લોથ એ બધા ડેલિકેટ વોશમાં મમ્મી વોશ કરી લેશે, ઓકે. અને આને બધાને કિચનમાં વોશ કરી લેશું ગોઠવતા પહેલાં. આ બર્ફ ક્લોથ છે. Not pictured sabar. આઈ મેડ ઇન ઇન્ડિયા છે ને બર્ફ ક્લોથ. મેડ ઇન ઇન્ડિયા, મેડ ઇન ઇન્ડિયા, યુઝિંગ ઇન ધ USA. મમ્મી પપ્પા ઓલ્સો મેડ ઇન ઇન્ડિયા છે. 2024-2025 નું તારું છે ને સ્કૂલ યર, કિન્ડર ગાર્ડન. આપણે વોશ કરવાનું છે બધું. સ્ટીલનું કેવું સરસ હેન્ડલ, નાનું મોટું એક લોટ કાઢવાનું આઈકિયામાંથી. આ તો કેટલા $2 છે, $2 or $3 સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. હા હા, શું છે ઇન્ડિયા વુડન. આપણે જે છે ને વેજીટેબલ કટ કરીને આમ સાઈડમાં આમ રીતે કરી પછી આમ વઘારમાં નાખવાનું લોટ માટે. એ કેવું સરસ છે. આ બધું મમ્મી વોશ કરી લેશે, ઓકે. હેન્ડ વોશ, અને પછી યુઝ કરી શકીએ આપણે, ઓકે. હા, મેડ ઇન ઇન્ડિયા. મમ્મી લઈ દીધી નવ્યા માટે માર્કર પેન આઈકિયામાંથી કાલે. પછી નવ્યા તો કેવું સરસ હવે બધું ડ્રો કરે છે. આ કેવું સરસ ડ્રો કર્યું કાલે તે આ સ્કેચ પેનથી, રાઈટ, માર્કર પેનથી. લા એવું લખ્યું છે કલરફુલ રેઇનબો. આ છે બ્રેડ બીન. આમાં બ્રેડના છે ને પેકેટ આપણે રાખી શકીએ વુડન બોક્સમાં, રાઈટ. પછી મમ્મી આ કાચના અમુક લીધા છે સ્ટોરેજ. 3 નાના નાના કાચના ડબ્બા. પ્લાસ્ટિક કરતાં કાચ સારું ને, પ્લાસ્ટિક ઇઝ નોટ ગુડ. પછી આમાં છે ને સોટ પાવડર, કાટલું, ગુંદ એવી નાના નાના જે હોય ને પેકેટ, એ મમ્મી રાખશે અહીંયા રસોડામાં ગોઠવીને. એના માટે કાચની 4 બોટલ આઈકિયામાંથી લીધી. $5 4 બોટલ. આ $4 કે $5.5 છે 3 કાચના कंटेनर स्टोरेज नाना नाना। 31 दिसंबर 2024 की सुबह तो ये आइकिया का सारा सामान ऑर्गेनाइज करने में, क्लीनिंग करने में रहा। मॉर्निंग रूटीन बहुत प्रोडक्टिव रहा। दोपहर में सबने लंच किया। मैंने आलू बैंगन और पालक, स्पिनच पालक की सब्जी बनाई थी, रोटी, छाछ और थोड़ी खिचड़ी भी थी। तो अभी ये जो हमारा गैस स्टव है ना, वो डीप क्लीन करना है, क्योंकि मैंने बैंगन का ओरा, રીંગણાનો ઓળો બનાવ્યો તો लास्ट लाइक 2 days पहला। तो थोड़ा किचन भी लाइक मुझे डीप क्लीन करना है। और नव्या और नीरव कर रहे हैं, जो टॉय ऑर्गेनाइज़र टेंट लिया है ना, वो असेंबल कर रहे हैं। बहुत यूज़फुल है वो भी बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए। और अभी तो 2 बच्चे होंगे, तो अभी नव्या और न्यूबॉर्न बेबी का भी उसमें अच्छे से सारे टॉयज़ आ जाएंगे, इसीलिए वो लिया। और देखो ये ग्रिल है ना गैस स्टव की, वो मैंने निकाल के भिगो के रखी थी डिश वॉशर लिक्विड में। अभी क्लीन कर दूँगी। और वो गैस स्टव का बर्नर और वो भी सब क्लीन किया। उसमें मैं पानी नहीं जाने देती, वेट और भीना कोरा कपड़े थी, आप उसको साफ़ कर सकते हो। पर ये ग्रिलिंग तो आप अच्छे से धो लो, तो सारी जो भी रेसिड्यूज़ होती है खाने पीने की, उसमें चिकास, वो निकल जाएगी। तो ये क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो मेरे लिए क्लीनिंग, घर को ऑर्गेनाइज़ करना, वो मेडिटेशन है। बच्चे होते हैं घर में तो पूरा लाइक वो तो टॉयज से खेलते ही रहते हैं। किचन में भी अगर आप कुकिंग करो तो गंदा होगा, अगर किचन में आप कुकिंग ही ना करो तो गंदा नहीं होगा, राइट। तो मेरे तो 3 टाइम कुक होता है, मैं करती हूँ किचन में।
चूल्हा जलाती हूँ तो क्लीन तो करना ही रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लीनिंग करने के बाद। वो स्टेनलेस स्टील का आपने स्पून होल्डर देखा, आइकिया से लिया था, उसमें भी मैंने बड़े छोटे चमचे जो स्पून्स होते हैं, बिग स्पून, वो ऑर्गेनाइज कर दिए। और इसी दिन की इवनिंग को मुझे मन हुआ कि चलो खजूर बिस्किट बनाते हैं। तो जब मैं स्कूल कॉलेज में थी और इवन शादी से पहले तक मेरी मम्मी और मेरे मासी खजूर बिस्किट बहुत अच्छा बनाते थे। इंडिया में आप वो मेरीगोल्ड बिस्किट आते हैं ना, उससे ये खजूर बिस्किट बनाते हैं, क्योंकि मेरीगोल्ड बिस्किट एकदम मीठे नहीं होते। खजूर की मिठास उसमें ऐड होके क्रंची और खजूर की मिठास दोनों उसमें होती है। मैंने भी इस तरह के बिस्किट कोस्को से बिस्कूफ करके हैं, जो कम स्वीट है, ओछा गईड़ा, तो उसके अंदर खजूर उसके आसपास करके रोल करके फिर उसको कोकोनट टोपराना भूक्का में रोल करीने वो खजूर बिस्किट बन जाएंगे। फूड प्रोसेसर में जो सारा घी से मैंने वो सोते किया ना, खजूर, अखरोट, बादाम, इसमें आप काजू पिस्ता भी डाल सकते हो। मैंने अखरोट और बादाम डाला है प्रेगनेंसी में। वैसे भी अखरोट बहुत ही हेल्दी होता है, ओमेगा फैट उसमें से मिलता है। तो नव्या को, नीरव को भी खजूर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से फूड प्रोसेसर में क्रश करके आप अगर बिस्किट के रूप में ना बनाना चाहो तो लड्डू भी बना सकते हो, खजूर लड्डू, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में दिखाया, वो लड्डू के फॉर्म में भी आप उसको बाइंड कर सकते हो। नहीं तो फिर आप बिस्किट कोई भी कम स्वीट, कम मीठे बिस्किट ले लीजिए और उसके अंदर सैंडविच की तरह खजूर को स्टफ़ कर लीजिए। तो देखो खजूर में तो वैसे भी स्टिकीनेस होता है, तो वो चिपक जाएंगे बिस्किट में, और फिर उसको इस तरह से ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा अगर टोपरा कोकोनट पाउडर से आप रोल कर लोगे तो खजूर बिस्किट आपको खाने में फ़ाए, इसलिए आप उसको आधा कर दीजिए पिज़्ज़ा कटर से या फिर धार वाली नाइफ चप्पू से। तो फिर वो अच्छे से आप उसको छोटे छोटे पीस में वो 2 पीस करके आप बच्चों के स्नैक बॉक्स, लंच बॉक्स में डेजर्ट की जैसे भी भर सकते हो। सुबह उठ के फिर दूध से पहले आप ये खा लीजिए, ऊपर दूध पी लीजिए। सांझ का टाइम है, दिया बत्ती किए और हम सुंदरकांड, रामचरितमानस तो सुनते ही रहते हैं। और फिर डिनर में मैंने पिज़्ज़ा बनाया, तो आप एंड तक बने रहिएगा। मेरी मम्मी की रेसिपी है पिज़्ज़ा की। पत्ता गोभी और कैरट और कैप्सिकम या फिर एलोपिनो, कम तीखे वाली मिर्ची को आप संभार के जैसे सोते कर लीजिए और फिर उसको पिज़्ज़ा का टॉपिंग बना लीजिए। उसमें केचप, पहले पिज़्ज़ा का जो रोटला मैंने ओनेस से लिया, ये पटेल ब्रदर इंडियन ग्रोसरी स्टोर में से लिया था, तो वो आप आगे देखोगे। और फिर हम रात को भी सोने से पहले संकट मोचन हनुमान अष्टक अवश्य पढ़ते हैं एज अ फैमिली। तो इस तरह से हमारा 31 दिसंबर 2024 लास्ट डे रहा। और यहाँ पर भी बहुत सारे फटाके फूटे थे, पर हमने तो घर में इस तरह से सात्विक वैसे सेलिब्रेट किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। कम थकान और अच्छे से आप अगर प्रोडक्टिव वैसे आपके सारे दिन सेलिब्रेट करो। हर एक दिन सेलिब्रेशन है, क्योंकि हम उठते हैं उससे, तब से हम धरती माता की और ये प्रकृति, नेचर का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें नया दिन दिया। मम्मी શું બનાવે છે પિઝા. પિઝા